divided into mainly these two chapters. Initially we will be talking about quantum and afterwards we will be talking about nano. Although size-wise if you go, it is supposed to be the other way around. Right? If you go from classical, you go towards smaller and smaller particles, and then as the name suggests, nano means just like the car, those particles are pretty small. And in quantum, you go to like crazy small particles which start to behave crazy. That is why that experiment that you guys saw, it felt very weird. It tried to defy your logic. So why are we going first quantum and then nano? The reason is basically in nanotechnology we'll be talking about more of applications. So you guys, as you guys are supposed to be engineers, for engineers basically theory matters little bit less compared to what practical or what things you can apply in real life. So that matters more. So in application based things, nanotechnology is basically where you will be talking about lots of applications of all these things, and in quantum mechanics we will be talking about how those things behave physics wise. So you can just think of these two chapters as more of theory and then more of applications of more or less the similar things. Okay, so in quantum mechanics we will be talking about first of all dual nature of light and de Broglie waves. Afterwards we will be talking about Heisenberg's uncertainty principle, and then we will be going little bit deep into the wave function of the Schrodinger equation. So this thing is not much in depth for you guys because obviously again it goes very deep into the details of all of those maths involved, which is not important to you guys, but we will be talking about at least that much that you guys will understand what a quantum mechanical wave means. Afterwards there will be an example of particle in an infinite potential well. Why this thing is important is basically this example will tell you that in what form you can apply quantum mechanics in real life. So this is the bridge between application of this whole of this theory. So that is how this chapter is designed for you guys. And afterwards in the next chapter we will be talking about purely applications. So first in quantum mechanics, as the name suggests, those things are basically, the name comes from quanta. Quanta means the fundamental particle of anything, the smallest unit of anything. That is what quanta means. And quantum mechanics, whenever you talk about it, you are basically talking about the smallest particles possible of some particular material. So this is where this term comes from. And as you guys can see these fancy drawings where they are talking about these atoms, and in these atoms you guys are seeing protons and neutrons, and this incorrect diagram which is showing you that electrons are revolving around in a star-shaped manner, which is completely wrong. Yes or no? Even in plus 1 plus 2 you guys went through those things where you guys knew about some things which are called orbitals. You guys learned a little bit about hybridization and all those things. So what you guys found out was that the electrons, they don't behave in such a manner. They have some fixed positions, and the position is also not just a single point in space. That fixed position means distance from the nucleus is supposed to be bounded by some limitations. Those limitations are decided on the basis of some quantum rules. So that is what you guys know so far, that there are some certain rules which decide that electrons are supposed to be staying in this much area only, and that much area is an area, a volume, something which is not point. So whenever I am saying that something is supposed to be in some certain bounds, I am never talking about pinpointing something. Correct? In classical mechanics, I can clearly say that I am standing here, I am at this position, x and y coordinates. But in quantum mechanics, if I am an electron, I will not be able to say that I am present here right now. I will be saying that I am probably present here, and I will be having a probability of being present here at this moment. So my probability will be spread out throughout space. We'll talk more about these things and you guys will start to understand what this probability and all these things mean when we'll be talking about that how difficult it is to find out the position of quantum particles.
So let us again go to that previous example. If there is some particle and you want to find out, or if you just want to observe that particle, what you do? You collide some other particle with it, and after collision that particle comes back to you and gives you the information that something was there जिससे मैं टकरा के वापस आया हूँ. Correct? Otherwise वो particle सीधा चला जाता. ठीक है? That is the standard way of observing anything. Right now, if you are observing this light from this white wall, that means this light is your information which is telling you that there is something present here. If the light went straight through, that means there was nothing present here. Correct? So this is the basic way of identifying if something is existing somewhere or not. And if you try to do the same thing on quantum particles, the fundamental difference between those particles and this wall is that those particles are so light. In the process of finding out their position, you give them enough energy to move away. ठीक है? तो बेसिकली जब तुम उनको देखने की कोशिश करते हो, तुम जो भी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है, सबसे हल्का पार्टिकल, सम वेरी लो एनर्जी फोटोन. करेक्ट? उससे हल्का कोई सुना है? फोटोन से लाइटर पार्टिकल किसी ने सुना है कभी? रेस्ट मास 0 बताते हैं फोटोन का. ठीक है? अगर किसी चीज का रेस्ट मास 0 है, दैट मींस उससे हल्का क्या होगा? नेगेटिव मास तो होने से रहा. ठीक है? सो इफ समथिंग इज हैविंग रेस्ट मास 0 and when it is moving, then it has some kind of momentum, and if you give it very less energy, that means rest mass तो 0 है ही, motional mass जो है उसमें भी तुमने minimum दे दी उसको energy. Even if that particle goes and collides with some quantum particle and returns back to you, in the process of colliding with that particle, something like billiard balls will happen, in which is, even if there is a small billiard ball, when it will collide with the bigger one, it will give some little bit of momentum to that particle, and whenever it gives that momentum, it will return back to you and tell you that that particle is present here, but now it's not here, it has moved ahead. तो वो क्या? तुमने उसको ऑब्जर्व करने के चक्कर में जहां ऑब्जर्व किया था उस जगह से हिला दिया, तो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची वो गलत पहुंची. करेक्ट? तो क्वांटम में there is this principle which is called uncertainty principle. वो बेसिकली यही सब बताता है. वो कहता है कि there are two fundamental things, either position or velocity. तुम दोनों को एक साथ प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते. अगर तुम एक चीज की एक्यूरेट रीडिंग लोगे तो दूसरा बदल जाएगा, दूसरे की एक्यूरेट रीडिंग लोगे तो पहला बदल जाएगा. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है? तो ये जो तुम्हें फैंसी डायग्राम दिख रहे हैं सारे उसी की बात कर रहे हैं. हम लोग काम की चीज पे आते हैं. These are some of the applications of quantum mechanics, all those things, laser, Qualcomm Snapdragon, this is the SoC in most of your phones. This is, I believe, this is a photovoltaic cell, how you are converting solar energy into electrical energy. All of these are applications of quantum mechanics. हमें ऊपर से लगता नहीं कि quantum की application, because it feels like there is some solid state device, some kind of chemistry is involved. But चाहे physics हो, चाहे biology हो, चाहे chemistry हो, when you go at the core level, Indians सबके सब quantum ही है. So until unless you know about the quantum nature of those particles, everything else comes afterwards of that. So once you know how quantum particles behave, only then you can keep on moving ahead and find out that how they will behave in a bulk manner and how those materials will be formed. ठीक है? तो हम आते हैं आगे. ठीक है? These are all the application, all those things. You guys know these things. ये क्या कोई जानता है? Superconductivity. So this is something for food for thought for you guys कि superconductivity कैसे exist करती है. Classical mechanics से no one can explain this phenomenon, because this is something in which they say that there is a thing called quantum locking that happens. So effectively this is a kind of a magnet which is levitating on a superconductor. So what happens is superconductor actually quantum mechanically locks this thing in this place. So it is not just levitating. Even if you turn it upside down, it will stay there. So it is not just repelling it, unlike your regular magnets. It has locked that state of that particular magnet at a fixed distance from itself. So even if you shift it upside down, it will stay there. So classical mechanics say you guys will never be able to explain this thing. So these are some of the applications of quantum mechanics. Yes, now let's get to
द मेन पार्ट्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम क्या बोलता है? फोटो एंड इलेक्ट्रिक एंड सम इफेक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो बेसिकली इनपुट इज photons, that means there is some material, generally there is a metal जिसके ऊपर photons आ रहे हैं बाहर से, photons की stream, and that photon stream is colliding with one particular electrode of that material, and वो जो photons हैं उनकी energy इतनी है कि वो photons की energy से उस particular electrode पे से electrons emit out हो जाते हैं। So basically हो क्या रहा है? There are lots of atoms in this electrode, and those atoms are having electrons in such an orbital that just getting enough energy after that orbital will set those electrons free. And how much energy is required for those electrons to get free is precisely the energy of these photons which you are putting on them. समझ में आया? आया ना? लंबा सेंटेंस था, दोबारा बताऊं। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कॉपर टाइप का मटेरियल, ये एक ऐसा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेट अस से जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो उस एटम के या फिर उस न्यूक्लियस के बाउंड रीजन से बाहर निकल जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। उनको फ्री बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई जितनी रिक्वायरमेंट है, वो डेल्टा ई उनको मिल रहा है फोटोन से। दैट मीन्स जो फोटोन तुम उनको प्रोवाइड करोगे, वो फोटोन का जो एच म्यू है, एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, इन विच एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज अ फिक्स वैल्यू। म्यू या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, दैट इज द ओनली क्वांटिटी विच टेल्स कि उस फोटोन में एनर्जी कितनी है, ठीक है। सो तुम्हें उसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी सेट करनी पड़ेगी प्रिसाइजली कि वो फ्रीक्वेंसी h इंटू म्यू करने पे जो एनर्जी की वैल्यू बनती है वो एग्जैक्टली उतनी बने जितनी इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ? पक्का? सो बेसिकली ये जो तुम एनर्जी प्रोवाइड करते हो इससे, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। वी जनरली रिप्रेजेंट इट एज W, ठीक है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो जिससे वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं अपनी बाउंड स्टेट से, और जैसे वो फ्री होते हैं वो इधर क्यों जा रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां क्यों जा रहे हैं? क्या रीजन है? बेसिकली इसके साथ यहाँ पे एक सर्किट कनेक्टेड होता है, जो सर्किट इसको हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड रखता है। यहाँ नहीं शो किया हुआ बट इट एग्जिस्ट्स। सो बेसिकली वो क्या करता है? वो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने के लिए। अदरवाइज अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो सिर्फ फ्री होने चाहिए, उनको और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं मिली ना जिससे मूव करें, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलती है? वो मिलती है थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? इफ यू पुट ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, तो इस इलेक्ट्रोड के बीच में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे, दैट मींस अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रखा, यहाँ हल्का सा भी अगर नेगेटिवली चार्ज रखते हो, दैट मींस जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट ए फोटो इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के आने के रिस्पॉन्स में जनरेट हुआ है, एंड दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? सो आइंस्टाइन ने इस चीज का आविष्कार किया था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आइंस्टाइन इज फेमस अदर देन E = mc square। This is more important because this gave the fundamentals जहां से quantum mechanics start हुई थी। After this, they found out that the wave nature of photon, क्योंकि फोटोन में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ओनली फ्रीक्वेंसी टेल्स की फोटोन में कितनी कम या ज्यादा एनर्जी होगी। अगर हम फोटोन का पार्टिकल बात करें तो किसी पार्टिकल की एनर्जी को कम या ज्यादा करने के लिए क्या ऑप्शन होते हैं? एक उसका मास, दूसरा उसका वेलोसिटी, कितनी कम या ज्यादा हो रही है। फोटोन के केस में क्योंकि लाइट की हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, c फिक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो जब लाइट की वेलोसिटी फिक्स होती है और फोटोन का रेस्ट मास 0 है, दैट मींस सभी फोटोन्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए। लॉजिक ये बोलता है ना, फोटोन की एक छोटी सी बॉल है, उस बॉल का अगर हमने बोल दिया कि मास 0 है और हमने बोल दिया वो सिर्फ और सिर्फ c की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है,
दैट मीन्स दुनिया में जितनी भी लाइट एग्जिस्ट करती है सबकी एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। अगर सबकी एनर्जी फिक्स होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, दिस इन सम फॉर्म प्रूव्स दैट लाइट का ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए यू नीड द क्वांटिटी म्यू, फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, और फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वेव की होती है। तो दैट इज हाउ दिस एक्सपेरिमेंट हिंट्स टुवर्ड्स द वेव नेचर ऑफ फोटॉन्स। वो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। अभी हम जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे वहां प्रूव होगा कि पार्टिकल्स का भी जो रेगुलर एटम्स या फिर जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं अदर देन फोटॉन्स, उनका भी वेव नेचर होता है। अभी हम उस पर जाएंगे। तो पहला चीज पर समझ में आ गई, लाइट का ड्यूअल नेचर इसने कैसे एक्सप्लेन किया। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, अभी हम इस सब के ऊपर आएंगे। एक चीज और ध्यान देनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये डिसाइड होता है कितने फोटॉन्स आए हैं उस पे। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो क्या डिसाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फोटो करंट कितना है, करेक्ट। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं करंट ज्यादा है, कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं करंट कम है। दैट मीन्स फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रोड, करेक्ट, यस और नो। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, पक्का। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे अगर वो डिसाइड कर रहा है कि फोटो करंट कितना होगा, तो दूसरी जो चीज है कि फोटो करंट होगा भी कि नहीं होगा, वो चीज डिसाइड कर रही है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है फोटॉन्स की। इस स्टेटमेंट को दोबारा समझे। अगर तुमने जो लाइट डाली है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, कम का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम या ज्यादा करना, करेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये फोन है और बेसिकली ये जो टॉर्च जल रही है फिलहाल इसमें, ठीक है, प्लस जो तुम्हें ऊपर ट्यूबलाइट दिखा रही है उसमें, दोनों का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे आर ऑलमोस्ट लाइक व्हाइट कलर, ठीक है। ऑल्दो व्हाइट कलर नहीं होता, बट इफ वी इमेजिन दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग ए कलर, देन what you are seeing is that tube light or let us say this LED is generating more light than this small LED. That means हो क्या रहा है कि दोनों का वेवलेंथ शायद सेम होगी क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सेम कलर के हैं, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां से ज्यादा जनरेट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम कंपेयर टू दिस वन। सो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है दैट इज बेसिकली डिसाइडेड, यू कैन चेक इट बाय द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आ रही है। दूसरा जो चीज है जो मैं बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर एक सेट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर तुम प्रोवाइड करते हो इसको, तो देयर विल बी जीरो फोटो करंट। रीजन इज हर एक सिंगल फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, उतनी एनर्जी की वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करके फ्री हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इतनी एनर्जी है, इसको यहां तक पहुंचना है फ्री होने के लिए। यहां से लेकर यहां तक इट इज लाइक जैसे अर्थ का जो ऑर्बिटल है जहां पे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ऑल दोस एग्जिस्ट, ये मान लेते हैं कि उस तरह की चीज है। तो इसकी यहां से लेकर यहां तक की बाउंड्री में अगर इलेक्ट्रॉन उठता है तो वापिस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। बट अगर वो इस चीज को क्रॉस कर लेता है उसके बाद में वो उस न्यूक्लियस के लोकल बाउंडेशन जोन से बाहर जा चुका है, ठीक है। तो जो हम इसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करें, फोटोन से प्रोवाइड करें, वो एक्सटर्नल एनर्जी अगर इस डिफरेंस से कम होती है तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन कभी फ्री नहीं हो पाएगा। फ्री नहीं होएगा तो करंट नहीं जनरेट हो पाएगा। दैट मीन्स कि तुम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट इसके ऊपर इल्यूमिनेट करते हो तो तुम उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर विल बी जीरो फोटो करंट। क्लियर है, पक्का पक्का बताओ, किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे फोटो करंट जनरेट होगा, उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर एग्जिस्ट कर रही है, अब बात आती है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, वो डिसाइड करेगा कि फोटो करंट कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये दो पैरामीटर है। तो वही सब जो है तुम्हें बताया, वही सब यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है।
the flow of current starts as soon as light is incident on the cathode. That means ये instantaneous होता है, ठीक है. Stopping potential depends on the frequency of light. Stopping potential is nothing but the same thing जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है. दैट मींस उस न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ किस बाउंड्री तक उसको वापस खींच सकती है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. जब आप इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं फोटोन से, तो इट जस्ट कम्स आउट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. ठीक है, ये वही बात हो गई. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट करता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल. करेक्ट, यस और नो? एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दैट फोटोन, it is not dependent on intensity, it is dependent on the frequency of the photons. ठीक है. So this was the formula. E is equal to h. F लिखो, इसको h mu लिखो, that is your choice. H is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. ठीक है. अब आते हैं हम डी ब्रोगली रिलेशन के ऊपर. डी ब्रोगली रिलेशन क्या बोलती है, ये स्टेटमेंट पढ़ो. That if light which is generally considered to be wave can behave as particle, then particles can also behave as waves. तो ये बहुत समझदार इंसान था. देखो इसने क्या किया, दूसरे का होमवर्क कॉपी कर लिया. ठीक है, बट ये तुम लोगों से थोड़ा ज्यादा समझदार है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कॉपी भी इस तरह करो कि थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं तो पकड़ में नहीं आएगा. ठीक है, इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कॉपी करने में समझदार था. तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि देखो ये लाइट है, ये बोले इसका वेव नेचर होता है. तो उसने उसके चीजों को इंटरचेंज कर दिया, बोले कि मैटर जो है उसका भी हो सकता है, इसका मतलब ये है. सो इसने क्या किया, इसने एक डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करी, जो इसने किस चीज की करस्पॉन्डिंग करी, कि कोई भी पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है, मैटर की बात कर रहे हैं, उस मैटर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक वेव एग्जिस्ट करेगी हमेशा. दैट वेव इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेव. सिंपली इसने क्या किया, h upon p, p इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल. अब p कम या ज्यादा हो सकता है. अब जस्ट इमेजिन हम दो केस लेके चलते हैं. पहला केस मैं एज ए पार्टिकल, ठीक है. दूसरा केस हम ले लेते हैं समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का p निकालते हो, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, हम एक चीज को बराबर करते हैं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो. ठीक है, हम सिर्फ मास को इंडिपेंडेंट मानते हैं, वेलोसिटी मान लेते हैं कि मैं प्रोटॉन की स्पीड से चल रहा हूं. ठीक है, तो मेरा मास जो है आई एम समवेयर अराउंड 77 kg. ठीक है, प्रोटॉन का मास होगा 10 to the power कितना होता है, कैन एनीवन टेल मी? प्रोटॉन का मास 10 to the power minus 27 के आसपास जाता है. याद है, जब इलेक्ट्रॉन में आते हैं 10 to the power minus 31 में जाते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स एंड द 2 grams, मैं तो किलोग्राम्स पे जा रहा हूं, इवन 1000 मोर. सो दैट मीन्स द डिफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 की पावर समवेयर अराउंड 20 और 21 समथिंग लाइक दैट, सॉरी 31 और 32. तो अगर दो चीजों के डिनोमिनेटर में 10 की पावर 31 या 32 का डिफरेंस है, तो उनका जो लैम्डा निकल के आएगा उसमें कितना फर्क होगा सोचो. अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 27 है लेट्स से, न्यूमरेटर में जाके 10 की पावर प्लस 27 बन जाएगा. करेक्ट, जो हमारा h था, h में क्या था, 10 की पावर माइनस 34 थी. राइट, जो पार्टिकल का मास बहुत कम है, इतना कम है कि वो उस माइनस 34 की एक लार्ज अमाउंट को हटा देता है. ठीक है, तो हम 10 की पावर माइनस 31 वाले मास को कंपेयर करते हैं. 10 की पावर माइनस 31 नीचे, माइनस 34 ऊपर, बचा कितना, 10 की पावर माइनस 3. 10 की पावर माइनस 3, सिर्फ इस नंबर को इमेजिन करो, दैट इज 0.001. करेक्ट, दैट नंबर इज स्टिल सेंसिबल. समझ में आ रहा है, बोला भी जा रहा है. करेक्ट. अब अगर इसके मास में तुम मेरे मास को पुट करते हो यहाँ पे, ठीक है, लगभग मतलब 100 किलो मान लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं मैं 1 साल तक खाए जा रहा हूँ सिर्फ. ठीक है, तो अगर मैं 100 किलो का हो गया, दैट मीन्स 10 की पावर 5 ग्राम. करेक्ट, 10 की पावर प्लस 5 में ग्राम नीचे है, वो ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 बना. 10 की पावर माइनस 34 ऑलरेडी था, 10 की पावर कितनी बन गई, माइनस 39. 10 की पावर माइनस 39 अगर लैम्डा है किसी चीज का, इट इज सो स्मॉल कि तुम मेजरमेंट की बात भी नहीं कर सकते. करेक्ट, तो इससे हमें क्या पता चला, जब हम क्वांटम पार्टिकल्स पे जाते हैं तो उनका वेव नेचर बड़ा एग्जिस्ट करता है, 10 की पावर माइनस 3, डिसेंट इनफ, मेजरेबल इनफ. जब जैसे जैसे हम बड़े पार्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, उनका
नॉट वेविंग अराउंड, मैं सीधा खड़ा हूं एक जगह पे। दैट्स द रीजन ना कि मैं बोल सकता हूं कि मैं इस जगह पे हूं, आई एम फिक्स्ड एट दिस पोजीशन बिकॉज माय वेव नेचर इज ऑलमोस्ट जीरो। इफ समथिंग इज 10⁻⁻39 आगे अगर मीटर में लिखा हुआ है तो दैट इज प्रैक्टिकली जीरो, करेक्ट। सो दिस प्रूव्स कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो रूल है, जो हम डी ब्रॉगली रिलेशन की बात करते हैं कि वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन क्वांटम पार्टिकल्स। जैसे जैसे तुम पार्टिकल्स की साइज बड़े करते आते हो, वेव नेचर छोटा होता जाता है, तो इफेक्टिवली उस पार्टिकल का वेव नेचर दिखना ही बंद हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है। दैट इज व्हाई दे से कि क्वांटम पार्टिकल्स हैव ड्यूअल नेचर। रेगुलरली पार्टिकल्स की बात नहीं करते, सभी में ड्यूअल नेचर होता है, पर जो मेरा दूसरा नेचर जो है वेविंग वाला, वो इतना छोटा है कि तो मेजर ही नहीं कर पाओगे कभी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्लियर हो ये आइडिया? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। So this wavelength is known as de Broglie wavelength. The experimental verification of this hypothesis was given by Davison German experiment. तो उसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उससे इसने पता करी थी चीज, ठीक है। So हाँ, इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन क्या था, इसमें इसने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए वेव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे अभी हमने बात करी थी 10⁻³ के ऑर्डर की वेव निकल के आ सकती है, दैट इज अ मेजरेबल थिंग। सो हाँ, डाउट है क्या किसी को? ओके, ठीक है। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। क्यों? क्योंकि वो मैटर के पार्टिकल्स हैं जिनकी वेव नेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको मैटर वेव्स बोलते हैं। सो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे पूछ लिया मैटर वेव क्या होती है एक्सप्लेन करो, डी ब्रॉगली वेव को भी मैटर वेव बोलते हैं, एक ही चीज के दो नाम है, दैट्स ऑल, ठीक है। पार्टिकल, फ्री पार्टिकल, ठीक है। यहाँ आते हैं, E is equal to p²/2m। अब ये चीज कहां से आ गई? For a free particle of mass m moving with momentum p, the energy is only kinetic energy. 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। So for any particle, जनरली किस पार्टिकल की बात हो रही है? क्वांटम पार्टिकल्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, देखो, मूविंग विद मोमेंटम m p, the energy is only kinetic energy। अब तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि p² की बात न्यूमरेटर में p² है, यानी कि m into v। यही सुना है आपने मोमेंटम के बारे में। अगर v 0 है, या फिर अगर हम बोलेंगे m 0 है, जिसने बोला ना ओनली काइनेटिक एनर्जी, वो किस में होता है? फोटॉन्स की बात हो रही है ना बेसिकली, ठीक है। तो क्वांटम पार्टिकल्स में जनरली क्या होता है, रेस्ट मास इज वेरी वेरी स्मॉल एंड देयर मोशनल मास बिकम्स सो लार्ज। रीजन इज देयर वेलोसिटी इज लार्ज। तो उनकी वेलोसिटी की वजह से उनका मोशनल मास बढ़ जाता है एंड दैट मोशनल मास कम्स फ्रॉम देयर मोमेंटम p। तो जब भी हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करेंगे, हम जनरली दो टाइप्स के मास की बात करेंगे, एक रेस्ट मास, एक मोशनल मास, ठीक है। क्लियर है? अब हम आते हैं इसके ऊपर एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा है p²/2m, अगर हम इसको ओपन अप करें तो क्या बनेगा? ये p² m² into v², करेक्ट। m² into v² में से तुम m को नीचे वाले के m से काट दो, क्या बन गया? mv², और ये क्या 1/2 हाफ mv²। सो ये फॉर्मूला खुद ही प्रूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फॉर्मूला हाफ mv² ही है, दिखने में अजीब दिख रहा था, क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्म में इसको आगे इक्वेशंस में यूज करते हैं, इसलिए इस फॉर्म में लिखा है, दैट्स द रीजन। अदरवाइज इट इज जस्ट हाफ mv², नथिंग न्यू, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकल के आता है √2me। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोमेंटम और एनर्जी की रिलेशन लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी जो है वो उसके रेस्ट से कभी डिफाइन नहीं होती, वो डिफाइन होती है कि मूव कर रहा है कि नहीं। दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, कि उसकी एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता चल गया, सिर्फ एक ये फॉर्मूला, तुम आगे की पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं एक वेव इक्वेशन में, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन जो होती है ना, समथिंग इज सम फंक्शन ऑफ x एंड सम फंक्शन ऑफ t, ठीक है। अगर टाइम में वेरी कर रही है कोई चीज तो सम फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं, अगर सिर्फ पोजीशन में वेरी करते हैं सम फंक्शन ऑफ x बोल देते हैं। उनमें अगर तुम इसको पुट करते हो ना, तुम्हारी पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आगे भी बात करेंगे उसकी, फिलहाल तुम ये समझो, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अब इसमें इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं p को डी ब्रॉगली वेव में। तो सिंपली
जहां पे हमने मोमेंटम लिखा था वहां एनर्जी के टर्म्स में उसको चेंज कर दिया। अब जो ये जो फॉर्म बन के आता है डी ब्रॉगली वेव का, दिस इज आल्सो रिटन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। कहीं पे तुम्हें अगर एनर्जी गिवन हो किसी पार्टिकल की और तुम बोलोगे सर हमें बताया नहीं मोमेंटम, हम फाइंड आउट कैसे करें, करेक्ट। तो तुम एनर्जी से भी तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे में सोचना कि हमें वेलोसिटी नहीं दी तो हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलेगी, वो निकल जाएगी एनर्जी से, ठीक है। सो यू गाइस आइदर नीड एनर्जी और यू गाइस नीड गुड, शुक्र है बूस्ट नहीं बोला, ठीक है। अब हम आते हैं वेव फंक्शन पे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसकी इंट्रो दूंगा बिकॉज टाइम कम ही बचा है। वेव फंक्शन की बात करते हैं। So what does these matter waves represent and all these things? काफी चीज पे आते हैं। ये रहा साई। तो तुम लोगों ने कभी ना कभी तो लाइफ में ये सिंबल देखा होगा, त्रिशूल वाला। नहीं देखा? ठीक है, किसी सीनियर की बुक में कभी देख लिया हो गलती से, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं, एक फैंसी सिंबल है। दिस इज नथिंग बट ए फंक्शन। तुम लोग फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हो। ये एक नए टाइप का एफ है और कुछ नहीं है, ठीक है। बोलते इसको साई है, स्पेसिफिकली इसको साई सिंबल करके नाम दिया है। रीजन इज कि जिस इंसान ने ये सब कुछ पूरी मैथ्स डिजाइन करी थी उस इंसान ने इस सिंबल को यूज किया था अपनी मैथ्स में, दैट्स ऑल। अदरवाइज इट इज नथिंग बट एफ ओनली, सम फंक्शन ऑफ सम वेव व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम एक्स एंड टी, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग वेव फंक्शन बोल देते हैं स्पेसिफिकली। रीजन भी हो क्या रहा है? रीजन ये है कि देयर इज सम पार्टिकल जिसकी अभी हमने डी ब्रॉगली वेव वगैरह की बात करी, हम बोले कि वो पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है। बट हम कभी ऐसा तो देखते नहीं, अगर पार्टिकल एक जगह पे बैठा भी हुआ है तो हम बोलते हैं कि अब वो वेव कहां गई, मूव कर रहा है, तब तो हम मान सकते हैं। लाइक फोटॉन्स में क्या होता है, इफ फोटोन इज मूविंग थ्रू स्पेस, हम बोल देते हैं कि इस फोटोन के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। पर जब बोलते हैं कि कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, चाहे वो क्वांटम पार्टिकल ही क्यों ना हो, तो उसका वेव नेचर कहां गया? वेव नेचर तब भी एग्जिस्ट करता है। वो वेव नेचर शो कैसे होता है, ये उसकी बात करता है। इट टॉक्स अबाउट ए थिंग कॉल्ड वेव पैकेट। किसी ने सुना है वेव पैकेट क्या होता है? एक वेव है जिसको हमने एक पैकेट में रख दिया, यही होता है बेसिकली। वेव क्या होती है? तुम लोगों ने जनरली जो वेव का आइडिया सुना है, there is some sinusoidal thing which is moving from one direction to other direction, और तुम्हें कभी एंड्स नहीं दिखते कहां से आई है और कहां को जा रही है, that kind of thing, ठीक है। बट अगर तुम उसका एक स्मॉल पार्ट लो और स्मॉल पार्ट में वो वेव बननी स्टार्ट हो रही है और खत्म भी हो जा रही है, then that thing is called a wave packet। और ये जो है ये दोनों टाइप की वेव्स को एक्सप्लेन करता है, एक फुल लेंथ वेव को भी और एक वेव पैकेट को भी। दैट इज व्हाई ये सिंबल थोड़ा स्पेशल फॉर्म में शो किया है। अब इसमें हम जो बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसका, जहां पे हम बात करेंगे ये इसको, लुक एट दिस थिंग, दिस वन साई एक्स टी के मॉड का स्क्वायर। अब ये नई टर्म कहां से आ गई? हमने किसी फंक्शन का मॉड क्यों ले लिया, स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि एक्चुअल में अंदर से कैसा फंक्शन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सम एक्स एंड सम टी, करेक्ट। इससे ज्यादा इसके बारे में अभी मत सोचो। दिस इज सम फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, दैट्स ऑल, इतना ही है। अब अगर अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन में स्पेशलिटी क्या होती है, हम क्यों इसकी बात करना चाह रहे हैं, इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जब तुम इसके मॉड के स्क्वायर की बात करते हो तो उस टाइम पे ये फंक्शन एक रियल क्वांटिटी पे उतर आता है, तब तक ये एक मैथमेटिकल चीज है। जब तुम इसको ऐसे लिख रहे हो डायरेक्टली साई एक्स टी, टिल देन इट्स ए मैथमेटिकल थिंग। जब तुम उसके मॉड का स्क्वायर लेते हो तो एक रियल क्वांटिटी बन जाती है, एंड दैट रियल क्वांटिटी इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ए रियल थिंग कि कोई पार्टिकल की कितने परसेंट चांस है वहां पे एग्जिस्ट करने के, वो तुम्हें इससे मिलता है, उसके मॉड के स्क्वायर से। तो जब भी हम मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से, जैसे मैंने उस सेक्शन में बताया था, हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। हम इन दी एंड हम पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है। जब तक तुमने सिंपली ये लिखा तब तक मैथ्स है वो, और जब तुमने ये लिख दिया तो तुम उस मैथ से आउटपुट निकाल रहे हो, जब तुम उसके मॉड का स्क्वायर कर रहे हो। सो हेंस दिस थिंग, जब हम इसके मॉड के स्क्वायर की बात करते हैं तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
दैट मीन्स ये तुम्हें एक ऐसा कर्व बना के देगा जिसमें कर्व में तुम बोलोगे कि इस एरिया में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके एग्जिस्ट होने की, इस एरिया में कम है और इस एरिया में कम है। सो इट गिव्स यू काइंड ऑफ लाइक ए बेल कर्व। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, पक्का होश में हो? ठीक है, तो बाकी चीज हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक तुम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। ठीक है, तब हम बात करेंगे इसकी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके बाद में तुम्हें वेव फंक्शन के बारे में ज्यादा समझ में आएगा आफ्टर यू विल बी स्टडीइंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पे आई विल प्रूव टू यू गाइस कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ था, सिर्फ इस प्रिंसिपल से। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में सारी चीज एक्सप्लेन करी है इसी प्रिंसिपल में। इट विल टेल यू कि सब कुछ शुरू कहां से हुआ और क्यों हुआ था। दिस थिंग विल प्रूव एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।